Hello students, this is Priyanka welcoming you all to the virtual classroom of mathematics. Students, today I am beginning the very first chapter for you all, and that is chapter number 1, rational numbers. Let's pay attention on the learning objective of this chapter. In this chapter you'll learn about the properties of rational number, additive identity and multiplicative identity, additive inverse and multiplicative inverse, distributivity of multiplication over addition and subtraction, representation of rational number on a number line, and rational numbers between two given rational numbers. So these all topics I will be covering in this particular chapter. So today I'll continue with the very first topic, that is properties of rational number. So before beginning with the properties of rational number, let me tell you what are basically the rational numbers. So let's move on to the introduction part. It is, you have learned about rational number in your previous class as well. Yes, if you remember, in 7th standard also you have learned about rational numbers, that what are rational numbers. So the numbers which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called as rational numbers. ऐसे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं p अपॉन q के फॉर्म में, जहां पर लेटर p एंड लेटर q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर में यानी कि लेटर q कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, तो वो कहलाते हैं रेशनल नंबर्स. इन दिस चैप्टर विल स्टडी द प्रॉपर्टीज. आपको जैसा कि मैंने बताया हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, देखिए, closure property, associative property, commutative property and distributive property. So the names of these properties are not at all new for you all. You already have learned about these words in your previous classes. Some properties of whole numbers, natural numbers, integers were there in 6th standard and 7th standard. So you must have gone through all those properties. You must have read all those properties. So here, the names of the properties are similar, but here we will be reading about rational numbers. Okay. Further, we will explore the world of rational numbers by finding as many rational numbers as we desire between any two rational numbers. तो जैसा कि हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि किस तरीके से दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम चाहे जितने रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी के साथ में will also represent rational numbers on a number line. So you will also learn about how to plot the rational numbers on a number line. Fine. So as I told you, today first of all we'll begin with the properties of rational number. So let us begin with it. So students, in mathematics we have different operation. Operation means addition, subtraction, multiplication and division. So you're going to learn about these properties related to all the operations. So firstly, first property, I'm beginning with the addition topic. Okay, properties of addition of rational numbers. So very first topic here is closure property. Now what is there in closure property? Rational numbers are closed under addition. जो rational number होते हैं वो addition में closed होते हैं. Now what is the meaning of closed here? See, this means on adding any two rational numbers we always get a rational number. इसका मतलब ये होता है कि कभी भी आप दो rational number को जब add करेंगे तो आपको result में भी वापस एक rational number ही मिलेगा. Let us consider two rational numbers here. यहाँ पे जैसे हमने दो rational number लिए, एक हमने लिया -3/5 और दूसरा हमने लिया 4/7. देखिए ये दोनों rational number है because these are integers. Integers आपको पता है combination of negative and पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूडिंग 0. तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 नहीं है. दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर. तो हम जब इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट भी वापस क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा. तो देखिए यहाँ पर ऐड करके आपको बताया गया है. You already know how to add fractional number. So same way we have to add these numbers by taking the LCM of the denominator here. So 5 into 7 both are prime number. So 35 will be the LCM. Now in the table of 5, 35 comes 7 times. 7 into 3 is equals to 21. Minus sign is there, so minus 21. And in the table of 7, 35 comes 5 times. So 5 into 4 is equals to 20.
plus minus minus, so 21 minus 20 is equals to 1. Greater integer is 21, so minus sign will come here. So minus 1 upon 35 is the number which we have got, which is also a rational number. So you must have understood by this thing that we have added two rational number, and in the result again we got one rational number. Okay, now take any two pairs of rational number and find out whether their sums are rational numbers or not. आप इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए कोई भी दो रेशनल नंबर अपनी चॉइस से ले सकते हैं और उसको ऐड करके आप देखेंगे कि आपको भी रिजल्ट वापस क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा. तो इस वजह से हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो एडिशन के अंदर जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं. इसका मतलब रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो एडिशन के केस में वर्क करती है. देखिए यहाँ पर फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हो ए एंड बी, उनको ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद में आपको एक अलग ही रेशनल नंबर मिलता है जैसे कि सी, तो वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा. So that was closure property. Now I'm moving on to the next property, which is commutative property. So see, addition is commutative for rational numbers. Now addition rational numbers के लिए भी commutative होता है. देखिए this means irrespective of the order in which two rational numbers are added, their sums remain the same. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्डर के अंदर दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो सम आएगा वो सेम ही रहेगा. ओके, देखिए जैसे यहाँ पर दो रेशनल नंबर लिए हैं 3/8 और -5/9. अब आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए. पहले आपने 3/8 प्लस -5/9 किया और फिर आपने -5/9 प्लस 3/8 किया. दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया. देखिए 3/8 पहले फर्स्ट नंबर पर था और -5/9 सेकेंड नंबर पर था. नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3/8 सेकेंड नंबर पर है और -5/9 फर्स्ट नंबर पर है. दैट मीन्स दोनों रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो गया. ऑर्डर चेंज करने के बाद में भी जब आपने इसको ऐड किया तो देखिए आपका रिजल्ट दोनों केस के अंदर सेम ही आया है, -13/70. सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर हम दो रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो भी हमें जो रिजल्ट मिलता है वो दोनों जगह सेम रिजल्ट मिलता है. ओके, सो दैट मीन्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स. And we can say that for any two rational number a and b, और हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो अगर a और b, और उसको अगर हम ऐड करें उसका ऑर्डर चेंज करके, तो भी जो उसका रिजल्ट है वो दोनों जगह सेम आएगा. a plus b is equals to b plus a. Now the next property is associative property. Addition is associative for rational numbers. Now addition associative होता है रेशनल नंबर्स के केस में. This means that the order of addition does not matter while adding any three rational numbers. Commutative property के अंदर मैंने आपको दो rational numbers के थ्रू explain किया था. यहाँ associative property के अंदर क्या होता है, grouping of rational numbers होता है, यानी कि दो से ज्यादा रेशनल नंबर होते हैं, तीन रेशनल नंबर होते हैं यहाँ पर. अब आप उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम ही आता है. जैसे यहाँ पर तीन रेशनल नंबर लिए हैं -4/9, 5/7 एंड 3/8. अब इसकी ग्रुपिंग डिफरेंटली की है. देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर -4/9 को ब्रैकेट के बाहर प्लेस किया है और 5/7 एंड 3/8 को ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया है. और इस तरीके से जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 325/504. और नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी है. -4/9 एंड 5/7 को ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया है और 3/8 को ब्रैकेट के बाहर प्लेस किया है. और इस ग्रुपिंग के साथ में भी जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास में आंसर क्या आया है, 325/504. तो दोनों केस के अंदर जो आंसर है वो सिमिलर आया है. हमने इसका ऑर्डर चेंज किया, ग्रुपिंग चेंज करी, उसके बाद में भी जो रिजल्ट है वो सिमिलर ही आया है. अब जरूरी नहीं है कि ये तीन रेशनल नंबर लेकर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आप अपनी विश से कोई भी तीन रेशनल नंबर लेकर भी इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर, तो हम बोल सकते हैं कोई भी तीन रेशनल नंबर अगर हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एक रेशनल नंबर ब्रैकेट के बाहर रखते हैं और दो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, तो रिजल्ट जो होगा वो दोनों जगह सेम आएगा. सो a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c. So this was all about associative property. So here
In the case of addition, I told you three properties: closure property, commutative property, and associative property. So all these three properties work under addition. Now I'm moving on to the properties of subtraction. As I told you that I'll discuss all the operations here. So first operation was addition. Now the second operation here is subtraction. Okay, so what are the properties of subtraction for rational numbers? Pay attention. The name of the property will remain same. There also was closure property, here also is closure property. वहां मैंने क्या बताया था closure property में आपको कि दो रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी वापस रेशनल नंबर ही मिलता है. यहाँ पे देखिए, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ये प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में वर्क करती है. यहाँ पर भी देखिए, this means that the difference of any two rational number is always a rational number. तो जैसे वहां मैंने बताया था कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट भी वापस रेशनल नंबर मिलता है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा. सो लेट अस कंसिडर हियर टू रेशनल नंबर 4/7 एंड -5/6. यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स को लेके सॉल्व किया गया है. अब वहां हमने ऐड किया था बिकॉज एडिशन था. यहाँ पर एंड का जो साइन है इसकी जगह आपको सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करना है. एंड ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन एंड ब्रैकेट के अंदर भी सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में टर्न होके हो जाएगा प्लस. तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 4/7 + 5/6. देन you have to take the LCM of the denominator and solve these rational numbers. So after solving you'll get the answer as 59/42, which is again a rational number. So the property is satisfying here that the difference of two rational number is again a rational number. दो rational number को हम subtract करेंगे तो वापस हमें rational number ही मिलेगा. So here you see this also for any two rational number a and b. a minus b is also a rational number. तो कोई भी दो rational number आप subtract करो, result वापस rational number ही होगा. Next is again commutative property. एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि दो रेशनल नंबर का अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी जो रिजल्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम आता है. सब्ट्रैक्शन के केस में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो वर्क नहीं करती है. सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर. This means that the difference of two rational number changes if the order of the number is changed. अगर आप दो रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हो सब्ट्रैक्शन के केस में तो उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, उसका आंसर भी डिफरेंट आएगा. जैसे यहाँ पे देखिए दो नंबर्स लिए हैं रेशनल नंबर्स 5/6 एंड -3/8. अब आप इसको पहले 5/6 -3/8 करते हो. सेंटर में माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन के केस में इस प्रॉपर्टी को कर रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. इस तरीके से अरेंज करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेट होगा 29/24. अब आप जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे यानी -3/8 को आप पहले प्लेस करेंगे और 5/6 को आप बाद में प्लेस करेंगे और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस केस के अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -29/24. सो सी यहाँ पे पॉजिटिव 29/24 आया और यहाँ पे नेगेटिव 29/24 आया है. तो दैट मीन्स left hand side is not equal to right hand side. That means the subtraction is not commutative for rational numbers. यानी commutative property subtraction के केस में work नहीं करती है. इसके अंदर left hand side और right hand side में different answer calculate होता है. Now the third property which we have discussed in addition was again associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि थ्री रेशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं हम, तो यहाँ पर भी वही होगा. बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के केस में वर्क नहीं करती है. आप कोई भी तीन रेशनल नंबर्स लेके देखिए और इसकी ग्रुपिंग चेंज करिए. ग्रुपिंग चेंज करने के बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग आएगा और राइट हैंड साइड में अलग ही आएगा. तो देखिए एक नंबर हमने ब्रैकेट के बाहर प्लेस किया, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे. रेशनल नंबर्स के बीच में जो साइन लगेंगे यहाँ पे माइनस के ही लगेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं. देन सेकंड रेशनल नंबर लिया था हमने 2/9, देन अगेन माइनस साइन, देन इन ब्रैकेट -2/3. अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. देन अब आगे जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा -13/45. ये आंसर आया आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में. अब राइट हैंड साइड में देखिए हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी. हमने फर्स्ट टू नंबर्स को सिमिलर ब्रैकेट में रखा है और जो लास्ट रेशनल नंबर है उसको हमने सेपरेटली
अलग ब्रैकेट में रखा है। यहाँ ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर और अंदर भी ब्रैकेट के माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर ही इसको प्लेस करना पड़ेगा सो दैट नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये माइनस माइनस सॉल्व होके प्लस हो जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है राइट हैंड साइड में वो डिफरेंट आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर डिफरेंट है और राइट हैंड साइड का आंसर डिफरेंट है। तो दैट मीन्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में वर्क नहीं करती है। ओके, सो फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर a b c, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. ओके, सो अभी तक हम क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। एडिशन में तो तीनों प्रॉपर्टी वर्क करती है, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी एंड कॉम्यूटेटिव भी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी है जो वर्क करती है, बाकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है, उसमें आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंट आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now I'm on property of multiplication of rational number। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, सब्ट्रैक्शन की डिस्कस कर ली, नाउ वी आर ऑन multiplication of rational numbers। so in this also the first property is closure property। closure property के अंदर एडिशन के केस में मैंने आपको बताया था कि जब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वापस रिजल्ट भी रेशनल नंबर ही मिलता है। सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने आपको बताया था जब दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वापस रिजल्ट भी हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में भी वर्क करती थी, सब्ट्रैक्शन के केस में भी वर्क करती थी, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रही है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर आप दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको वापस एक रेशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। तो देखिए यहाँ पे दो रेशनल नंबर कंसिडर किए हैं, 2/7 इंटू -3/4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा -3/14, विच इज अगेन अ rational number। okay, so for any two rational number a into b is a rational number, यानी इसको मल्टीप्लाई करके एक न्यू रेशनल नंबर c मिलता है, वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। ओके, रिमेंबर के अंदर देखिए, फॉर एनी टू रेशनल नंबर p upon q and r upon s where q and s is not equal to 0। अगर दो रेशनल नंबर हैं हमारे पास में p upon q and r upon s जहां पर q और s दोनों ही जीरो नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो p विल बी मल्टीप्लाइड बाय r एंड q विल बी मल्टीप्लाइड बाय s एंड हियर वी कैन डू कैंसलिंग आल्सो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कैंसिल होती है तो उसको हम कैंसिल भी करते हैं। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्क करती है। Now again the next property is commutative property। commutative property means change of order। एडिशन के केस में तो commutative property वर्क करती है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में commutative property वर्क नहीं करती है। So let us see how it works in multiplication। multiplication is commutative for rational number। so commutative property multiplication के केस में वर्क करती है। This means that changing the order of the numbers does not change the product। इसका मतलब है कि अगर आप दो रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो भी जो उसका रिजल्ट है वो वापस आपको रेशनल नंबर ही कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पर दो रेशनल नंबर लिए हैं 7/9 एंड 1/2, तो इसका ऑर्डर चेंज किया है। देखिए पहले 7/9 एंड 1/2 को मल्टीप्लाई किया है, जिसमें 7/9 को फर्स्ट नंबर पे प्लेस किया और 1/2 को सेकेंड नंबर पे प्लेस किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 7/18। देन सेकेंड टाइम में क्या करा है, 1/2 को फर्स्ट नंबर पे प्लेस किया और 7/9 को सेकेंड नंबर पे प्लेस किया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया हमारे पास में 7/18। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका ऑर्डर चेंज करने पर इसके रिजल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। That means commutative property works in the case of multiplication। So for any two rational numbers a into b is equals to b into a। तो आप दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको दोनों जगह सेम मिलेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के थ्री रेशनल नंबर्स होते हैं और उसकी ग्रुपिंग होती है। तो एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क
नहीं करती है। नाउ मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। दिस मीन्स दैट 3 or more rational numbers can be grouped in any order to find the product। इसका मतलब है 3 या 3 से ज्यादा कोई भी रेशनल नंबर्स अगर आप लेते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो इससे उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 रेशनल नंबर लिए 1/5, 3/4 एंड -2/9। तो देखिए इसकी ग्रुपिंग करी है। 1/5 जो फर्स्ट रेशनल नंबर है उसको ब्रैकेट के बाहर रखा गया है, और जो बाकी के 2 रेशनल नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया गया है। इसको जब कंप्लीटली सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व करने के बाद में आंसर आया है -1/30। ओके, और अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, अब फर्स्ट 2 रेशनल नंबर को हमने ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया है, 1/5 और 3/4 को कॉमन ब्रैकेट में रखा है, और -2/9 को सेपरेटली प्लेस किया है। तो इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद में भी अगर आप इसका प्रोडक्ट करके रिजल्ट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, -1/30। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम आया है, रिजल्ट इसका सेम आया है। सो फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स A, B, C, A into means 1 rational number outside the bracket, 2 inside the bracket will be equal to other side 2 rational number inside the bracket and 1 rational number outside the bracket. So it is true. So associative property works in the case of multiplication. Now we are discussing properties of division. Okay students, तो हमने अभी तक addition, subtraction, multiplication की properties discuss कर ली है. Now we are discussing the properties in the case of division. So see, very first property in the case of division is again closure property. Rational numbers are not closed under division. Now क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के एडिशन में भी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती है, और मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है, बट ये प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में वर्क नहीं करती है। एडिशन में मैंने आपको बताया था कि 2 रेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्शन में 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट वापस रेशनल नंबर ही मिलता है, और मल्टीप्लिकेशन में 2 रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी वापस रेशनल नंबर ही मिलता है। बट डिवीजन के केस में ये जो प्रॉपर्टी है वर्क नहीं करती। दिस मीन्स दैट व्हेन वी डिवाइड अ रेशनल नंबर बाय अनदर रेशनल नंबर, द क्वेश्चन नीड नॉट टू बी अ रेशनल नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजल्ट वापस रेशनल नंबर ही मिले। जब आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो, सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट रिजल्ट विल आल्सो बी अ रेशनल नंबर। तो जैसे यहाँ पर हमने 2 रेशनल नंबर लेके देखे 2/3 एंड 4/5। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड एज यू ऑल नो डिवाइड जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और डिवाइड के बाद वाली जो रेशनल नंबर की वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ये 4/5 है तो मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद में रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। दिस ऑलरेडी यू हैव लर्न्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस। जब फ्रैक्शन चैप्टर आपने किया होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर तो आपको पता होगा कि डिवीजन कभी भी नेक्स्ट स्टेप के अंदर फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, और डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन के अंदर वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो वही हुआ है यहाँ पे 4/5 चेंज होके हो गया यहाँ पे रेसिप्रोकल 5/4। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, सो 5/6 विल बी द आंसर। तो इस केस में तो देखिए ये रेशनल नंबर मिला है हमें। अगर हमने 2 रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो रिजल्ट भी हमें रेशनल नंबर मिला, बट व्हाट विल हैपन इफ द डिवाइजर इज 0 विच इज अ रेशनल नंबर। बट इस केस में क्या होगा जब हम यहाँ पर डिवाइजर में 0 ले लेते हैं, यानी कि अगर हम 2 रेशनल नंबर, एक 2/3 लेते हैं और दूसरा 0 लेते हैं। 0 भी एक रेशनल नंबर है। मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में जैसे कि यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ 0, 0 is a rational number. Okay, rational number, now you'll say ma'am rational number are in the form of P/Q. तो यहाँ पर P/Q कहाँ है, तो ये देखिए 0 है तो 0 के नीचे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं नंबर 1। 1 को आप प्लेस कर सकते हो, तो देखिए ये जो है वो कन्वर्ट हो गया है P/Q के फॉर्म में, ठीक है। अब आप 0/1 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। देखिए 2/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद में मैंने क्या बताया आपको कि मल्टीप्लाई के बाद में जो
वैल्यू होती है यानी रेशनल नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है, तो 0/1 को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1/0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। मैंने आपको बताया था P/Q वेयर Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो आप 0/1 तो ले सकते हैं बट आप 1/0 इसको रेसिप्रोकल करके नहीं ले सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन रेशनल नंबर Q cannot be equal to 0, that means denominator cannot be equal to 0. तो अगर हम यहाँ पे 0 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो it is not defined, it is not possible. So we can say that rational numbers are not closed under division. तो हम बोल सकते हैं कि जो rational number है वो division के अंदर closed नहीं होते हैं, they are not closed under division. See this one you can underline. Except 0 all other rational numbers are closed under division. तो अगर यहाँ पे 0 से अगर हम डिवाइड नहीं करें फिर आप 0 को छोड़ के कोई भी दूसरा रेशनल नंबर लोगे तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर जाएगी, ठीक है। 0 को छोड़ के अगर आप कोई भी रेशनल नंबर से गिवन रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तब तो रिजल्ट भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इट विल नॉट वर्क। सो एक्सेप्ट 0 all other rational numbers are closed under division. 0 को छोड़ के बाकी जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं डिवीजन के अंदर। फाइन। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर. नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में वर्क नहीं करती है, यानी कि आप इसका ऑर्डर अगर चेंज करोगे दो रेशनल नंबर का तो आपको रिजल्ट वापस सेम नहीं मिलेगा दोनों जगह। ओके, क्या बताया था मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, अगर दो रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके हम उसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है दोनों जगह, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट सेम नहीं आता, मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। अब डिवाइड करोगे तभी भी रिजल्ट सेम नहीं आएगा। कैसे, देखिए 2/7 और -4/9 दो रेशनल नंबर लिए हैं, यहाँ पे डिवाइड जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हुआ और -4/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा -9/4। अब देखिए जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -9/14। अब इसका जब ऑर्डर चेंज किया, -4/9 को पहले लिया और 2/7 को बाद में लिया, फिर जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए अब आंसर क्या आया -14/9। तो दोनों जगह जो आंसर है वो डिफरेंट कैलकुलेट हुआ है, तो दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इन द केस ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन के केस में वर्क नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्क करती है। अब देखिए डिवीजन के केस में, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। इसमें भी देखिए तीन रेशनल नंबर लिए हैं, इनको अरेंज किया गया। एक बात आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वही ऑपरेशन यूज होगा। लाइक अगर हम एडिशन यूज करते तो यहाँ पर जो सेंटर में साइन है वो एडिशन का प्लेस होता, अगर हम सब्ट्रैक्शन यूज करते तो सेंटर में सब्ट्रैक्शन का साइन प्लेस होता, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता। अभी हम डिवीजन कर रहे हैं तो ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनके बीच में डिवीजन का साइन प्लेस होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, एक रेशनल नंबर ब्रैकेट के बाहर है और बाकी के दो रेशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर है। सेकंड स्टेप के अंदर फर्स्ट टू रेशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर है और थर्ड रेशनल नंबर ब्रैकेट के बाहर है। इस तरीके से जब हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आंसर आया -5/96 और राइट हैंड साइड में आंसर आया -135/32। तो देखिए रिजल्ट दोनों जगह different है। That means associative property does not work in the case of division for any three rational numbers a, b, c. A divided by in bracket b divided by c is not equal to in bracket a divided by b divided by c. तो ये work नहीं करती। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, मैंने आपको चारों ऑपरेशंस के अंदर एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको ये चारों ऑपरेशंस के थ्रू तीनों प्रॉपर्टीज समझ आ चुकी होगी। Now see, we are on the next topic. It is additive and multiplicative inverse. These both topics are very important. Students mostly make mistake in these topics, so please pay attention. When we add 0 to a rational number, the sum is the rational number itself. ये आप छोटी क्लासेस से स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं
तो हमें वापस वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर के केस में भी यही है कि अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वापस आपको वही नंबर मिलेगा जिसमें आपने 0 को ऐड किया है। दैट मीन्स a प्लस 0, आप a में 0 को प्लस करो या 0 में a को प्लस करो, आपको रिजल्ट वापस a ही मिलेगा। यानी 1/2 में आप 0 को प्लस करो या 0 में 1/2 को प्लस करो, आपको रिजल्ट वापस 1/2 ही मिलेगा। फाइन। नाउ 0 is called the additive identity for rational number। अगर आपसे पूछा जाए what is the additive identity for rational numbers, rational number की additive identity क्या होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 is the additive identity for rational number। तो additive identity का बेसिकली यही मतलब होता है कि given rational number के अंदर 0 को ऐड करना। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, 5/9 में 0 को ऐड किया, या 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड कीजिए रेशनल नंबर में, आपको रिजल्ट वापस वही नंबर मिलेगा। तो जब यहाँ 5/9 में 0 को ऐड किया तो रिजल्ट वापस हमें 5/9 ही मिला, या 0 में -4/7 को ऐड किया तो वापस रिजल्ट भी हमको -4/7 ही फाइंड आउट हुआ। ओके, when we multiply any rational number by 1, the product is the rational number itself। ये भी आप स्मॉलर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही नंबर मिलता है। ओके, तो यहाँ रेशनल नंबर के केस में भी यही है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस वही रेशनल नंबर कैलकुलेट होगा जिससे आपने 1 को मल्टीप्लाई करा है। तो देखिए यहाँ पे -5/8 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस फाइंड आउट होगा -5/8, और 1 को आप 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 3/7 ही फाइंड आउट होगा। सो एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि 0 को ऐड करना होता है, एंड this multiplication by 1 is the multiplicative identity। So what is the multiplicative identity for rational numbers? So 1 is the multiplicative identity for rational numbers। अगर rational numbers की multiplicative identity आपसे पूछी जाती है तो उसका आंसर होगा 1, और additive identity पूछी जाती है तो उसका आंसर होगा 0। additive identity में given rational number में 0 को ऐड करते हैं तो वापस वही नंबर मिलता है, और multiplicative identity में किसी भी rational number को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वापस वही रेशनल नंबर मिलता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस टॉपिक के अंदर भी बहुत मिस्टेक होती है, इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में हम करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। एडिटिव इनवर्स को स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए चेंज ऑफ साइन से। ओके, एडिटिव इनवर्स मींस चेंज ऑफ साइन। अगर नेगेटिव के अंदर कोई रेशनल नंबर गिवन है तो वो चेंज होके पॉजिटिव में हो जाता है, और अगर पॉजिटिव में गिवन है तो वो चेंज होके नेगेटिव में हो जाता है। देखिए, for any rational number a, there exists a rational number -a such that a plus -a is equals to -a plus a is equals to 0। और अगर आप एक रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ में सॉल्व करते हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है। तो देखिए, -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, -a किसका एडिटिव इनवर्स है? a का, और a is the additive inverse of -a, और a -a का additive inverse है। इसको अगर एग्जाम्पल के साथ में हम करते हैं तो देखिए 7/8 ये एक रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? चेंज ऑफ साइन, तो ये +7/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -7/8। और जैसा कि मैंने बताया, अगर हम एडिटिव इनवर्स को साथ में सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब माइनस का 7/8 आप पहले लेते हो और फिर प्लस का 7/8 लेते हो इसका एडिटिव इनवर्स, बिकॉज ये नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर वापस यहाँ पे 0 मिलेगा। देयरफॉर 7/8 एंड -7/8 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में इसका रिजल्ट 0 आया है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो रेशनल नंबर है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ओके, for any non-zero rational number a, there exists another non-zero rational number b such that a into b and b into a is equal to 1। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर हो आपके पास में, सपोज a, there exists another non-zero rational number, और उसके साथ में एक और नॉन जीरो रेशनल नंबर है b, अगर आप उसका मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a, तो आपको रिजल्ट हमेशा वहां पे क्या मिलेगा? 1 ही कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये किस केस में होता है? b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b।
b जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और a जो है वो b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को याद रखेंगे, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे आप स्मॉलर स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं रेसिप्रोकल, तो वही वर्ड यहाँ पर चेंज होके एडवांस होके आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल, वन एज अ सेम थिंग। तो देखिए जैसे यहाँ पर कोई भी एक रेशनल नंबर है a 3/5 और इसका b, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम, 3/5 का रेसिप्रोकल हुआ 5/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1। तो वही था यहाँ पर देखिए a इंटू बी, यानी कि a में जो भी वैल्यू है b उसका रेसिप्रोकल होगा और b में जो भी वैल्यू है a उसका रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल हुई हुई वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर चेंज हुआ है, 5/3 पहले, 3/5 इसका रेसिप्रोकल हुआ वो बाद में आया, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 5 और 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास में 1। ओके, so that is multiplicative inverse and additive inverse। तो additive inverse को स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे change of sign, and multiplicative inverse को आप याद रखेंगे रेसिप्रोकल से। ठीक है, ये चारों जो टॉपिक्स हैं आप अच्छे से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जीरो, टू ऐड जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब टू मल्टीप्लाई द गिवन रेशनल नंबर बाय 1, यू विल गेट द सेम रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स का मतलब चेंज ऑफ साइन, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल। सो ये चारों टॉपिक्स आप ध्यान रखेंगे। देन वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड is this, zero has no reciprocal, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया जीरो को तो आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो 0/1, बट जीरो का 0/1 का आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिप्रोकल करके वो हो जाएगा 1/0 विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि क्यू के फॉर्म में यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो जीरो का कोई रेशनल नंबर नहीं होता, और रेशनल नंबर्स को हम कभी भी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। फाइन, नाउ वी आर ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज में आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन भी यूज में आता है। सो दिस प्रॉपर्टी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू in the exercise itself. When we will be doing the sums of exercise, there this property will come. So along with the question I will be explaining you this property. Okay students, so today I have explained you closure, commutative and associative property in the case of addition, subtraction, multiplication and division. इन चारों operations के अंदर हमने ये properties solve की है। उसके बाद में additive identity, additive inverse, multiplicative identity and multiplicative inverse. These four topics also we have discussed. Now, here are the sums of mental maths that I want to discuss with you all. It is related to the properties only which we have discussed today. So, see what is there in these sums. यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स टू रेशनल नंबर्स हैं और इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर चेंज हो रहा है और बीच में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो सबसे पहले ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और दो नंबर्स हैं, उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कौन सा नंबर मिसिंग है, x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे 1/2 और 4 है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है, x की प्लेस पर आ जाएगा नंबर 4, तो यहाँ आप प्लेस करेंगे नंबर 4। अब नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, यहाँ पर 3 रेशनल नंबर आ रहे हैं और ग्रुपिंग देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर है, 1 ब्रैकेट के बाहर, और दूसरी तरफ 1 ब्रैकेट के बाहर है और 2 ब्रैकेट के अंदर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके बीच में ऑपरेशन भी देखेंगे आप स्टूडेंट्स, एडिशन है इसके बीच में ऑपरेशन, तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, 3 रेशनल नंबर है इधर और इधर 2 ही रेशनल नंबर है, एक नंबर मिसिंग है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है, यहाँ पे देखिए नंबर 6, तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 6। फाइन, नाउ सी पार्ट देखिए, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई विल एक्सप्लेन यू अलोंग विद द
एक्सरसाइज। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ब्रैकेट के बाहर एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट्स एडिशन का साइन। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो साइन होते हैं, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का साइन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का साइन हो सकता है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का साइन है तो वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर subtraction. So right now this is distributive property of multiplication over addition. तो यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू होती है वो 2 टाइम रिपीट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 5/7 एक बार आ रहा है, बट राइट हैंड साइड में 5/7 2 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज देखिए 3/8। तो 3/8 जो है वो राइट हैंड साइड पर रिपीट हो रहा है, तो कौन सा रेशनल नंबर रिपीट नहीं हो रहा? तो दैट मीन्स 2/7। ये जो 2/7 है ये यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो 5/7 के बाद में जो रेशनल नंबर आएगा वो कौन सा होगा? 2/7। and the name of this property is distributive property of multiplication over addition. Now see the next property. X into 1 is equals to -7/5. Now किसी भी रेशनल नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस सेम रेशनल नंबर ही मिलता है। एंड आई टोल्ड यू दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, जब हम किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे माइनस का 7/5 है, तो माइनस का 7/5 ही इस तरफ आएगा, क्योंकि जब हम माइनस के 7/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें माइनस का 7/5 ही फाइंड आउट होगा। ओके, नाउ 2/3 में आप क्या ऐड करोगे कि वापस आपको 2/3 मिल जाएगा? तो यहाँ पर जो 2/3 के बाद में x की वैल्यू है, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ आएगा 0, क्योंकि हम जब किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें वापस सेम रेशनल नंबर ही फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर x की प्लेस पर आप पुट कर देंगे 0। फाइन, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी गिवन नंबर में जब 0 को ऐड करते हैं तो वापस वही नंबर हमें फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट देखिए, 2/3 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस आपको 2/3 ही कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पर आएगा आंसर 1। 2/3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें आंसर क्या मिलेगा? 2/3 ओनली। सो दिस इज अगेन विच प्रॉपर्टी? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम किसी भी गिवन नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें सेम नंबर कैलकुलेट होता है। नाउ सी इन जी पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इधर कैंसलिंग होगी स्टूडेंट्स। ये जो 4 है, यहाँ पे 4 है और न्यूमरेटर में 4 है, तो ये जो दोनों 4 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इसको मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, इस 4 को भी मैंने कैंसिल कर दिया और जो दूसरा 4 है उसको भी मैं कैंसिल कर रही हूँ। तो देखिए this 4 and other 4 will be cancelled. These two 4s are cancelled. इसके बाद में जो 5 है हमारे पास में क्वेश्चन में, 2 5 है, एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में, तो ये जो 5 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पे न्यूमरेटर में एक 5 है, ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद में 2 3 है हमारे पास में, एक डिनोमिनेटर में है तो ये 3 कैंसिल हो गया और एक न्यूमरेटर में है तो ये वाला जो 3 है न्यूमरेटर वाला ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखिए अब हमारे पास में सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई है। क्या बचा है? 2 बचा है और 6 बचा है। 2 और 6 भी कैंसिल होता है। 2 की टेबल में 2 जो है वो आता है 1 टाइम और 6 जो है वो आता है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर जो 2 है ये कैंसिल होके हो जाएगा 1 और यहाँ पर जो 6 है ये कैंसिल होके हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये सारे अब देखिए नंबर्स कैंसिल हो गए। न्यूमरेटर में बचा है 1 और डिनोमिनेटर में बचा है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। तो हम इसका आंसर प्लेस कर देंगे यहाँ पे। 1 के नीचे आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे वैल्यू 3। सो हियर द डिनोमिनेटर विल बी 3, सो आई एम पुटिंग हियर नंबर 3। और देखिए साइन कौन सा आएगा? यहाँ पर साइन था हमारे पास में नेगेटिव के 2 साइन थे, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन मेंशन करने की नीड नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/3 ही इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
नंबर रेसिप्रोकल हो रहा है, देखिए -2/7 ये रेसिप्रोकल होके हो गया 7/2। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देखिए रेसिप्रोकल हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन था एक रेशनल नंबर के साथ में, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1 यहाँ पर आंसर आएगा h पार्ट में, x की वैल्यू। ओके, नाउ सी I पार्ट। x is the rational number which does not have a reciprocal। ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो कौन सा रेशनल नंबर होगा, वो होगा नंबर 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0/1 आप लिख सकते हो रेशनल नंबर में, बट 0/1 का आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, 1/0 नहीं कर सकते। ओके, so these were some sums of mental maths. You please go through this. I hope you have understood all the properties which I have discussed with you all today. Go through these properties, and according to these properties and all the introduction portion what I have explained you today, I will be explaining you exercise 1.1 in my next video. Okay students, so that's all for today, and I'll see you back in my next video with an explanation of exercise 1.1. Till then students, take care of yourself. Thank you from my side.